দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ফের দেখা দিয়েছে ঢাকা করাচি ফ্লাইট চালানোর সম্ভাবনা। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসা আবেদনের সুযোগ দিয়েছে পাকিস্তান। অনলাইনে আবেদন করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ই-ভিসা। সেই সুযোগে ভ্রমণ পিপাসুদের হিড়িক পড়েছে পাকিস্তানে যাওয়ার। পাকিস্তানের হাই কমিশনার বৈঠক করেছেন দেশের বৃহত্তম বেসরকারি এয়ারলাইন্स यूएस বাংলার সাথে। एक और खबर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन भारत के लिए ये खबर बहुत ही बुरी है, क्योंकि अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो इनकी आपस में दूरियां थी वो खत्म हो रही हैं और डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एक बड़ी मुलाकात भी हो चुकी है। किस तरह से यूएस बांग्ला जो एयरलाइन है, फिर पीआईए और बांग्लादेश जो विमान है, बांग्लादेश की जो हुकूमत की एयरलाइन है, वो अब इस्लामाबाद, ढाका, ढाका से कराची और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बड़ी ही गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक दूरियां पड़ गई थी, बहुत दूर हो चुके थे दोनों मुल्क, अब उतना ही करीब आ रहे हैं। और ये जो खबर है, जो एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे कैसे अब भारतीयों के लिए एक बड़ी बुरी खबर के तौर पर होगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और ये वीडियो क्लिप पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट जो फ्लाइट है और फिर इसके साथ साथ जो ई वीज़ा है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम कर दी गई हैं। और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ढाका में, उन्होंने मुलाकात की है यूएस बांग्ला एयरलाइंस के चीफ के साथ, इन कंपनीज के साथ। और फिर बांग्लादेश जो एयरलाइन है वो अब ये करने क्या जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद दारुल खलाफा है, कैपिटल है, ढाका से इस्लामाबाद, ढाका से कराची, ढाका से लाहौर, यानी 3 डेस्टिनेशंस बनती हैं। वहां से यानी ढाका से इन 3 मकामात पर अब डायरेक्ट जो फ्लाइट है वो ऑपरेशनल होने जा रही है बहुत जल्द। इसकी मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, जिसका सबको था इंतज़ार, वो वक्त बिल आखिर आ चुका है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সবশেষ 2019 সালে বাংলাদেশে ফ্লাইট চালিয়েছিল পাকিস্তান। এর আগেও একাধিকবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্স পিআইএ বাংলাদেশে ফ্লাইট বন্ধ করেছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক সময়ের জন্য। অভিযোগ আছে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হতো। 2015 সালে জাল মুদ্রা চোরাচালানের অভিযোগে বাংলাদেশে পিআইএ এর স্টেশন ম্যানেজার আলী আব্বাসকে আটক করেছিল বাংলাদেশ পুলিশ। পরে তাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। একই অভিযোগে বাংলাদেশে অবস্থিত পিআইএ এর কার্যালয়ে কয়েকবার অভিযানও চালিয়েছিল বাংলাদেশ পুলিশ। এমনকি করাচি থেকে ঢাকা পৌঁছা একটি ফ্লাইটেও বাংলাদেশি কর্মকর্তারা 2.5 ঘন্টা তল্লাশি চালিয়েছিল। এসব কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত 2019 সালে বাংলাদেশে ফ্লাইট চালানো বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান। অথচ সে সময় ঢাকা করাচি রুটে যাত্রী চাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ফের দেখা দিয়েছে ঢাকা করাচি ফ্লাইট চালানোর সম্ভাবনা। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসা আবেদনের সুযোগ দিয়েছে পাকিস্তান। অনলাইনে আবেদন করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ই-ভিসা। সেই সুযোগে ভ্রমণ পিপাসুদের হিড়িক পড়েছে পাকিস্তানে যাওয়ার। দুদেশের কোনো এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট না থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইন্সগুলোতে অন্য দেশের ট্রানজিট নিয়ে যেতে হচ্ছে পাকিস্তানে। তাতে বাড়তি ভোগান্তিতে পড়ছে যাত্রীরা। তাই ফের বাংলাদেশকে ঢাকা করাচি সরাসরি ফ্লাইটের প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাই কমিশনার আহমেদ মারুফ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করে এই প্রস্তাব দেন। অর্থ উপদেষ্টার সাথেও বৈঠকে ঢাকা করাচি সরাসরি ফ্লাইটের ব্যাপারে পাকিস্তানের আগ্রহের কথা জানান তিনি। বাংলাদেশও রাজি হয়েছে পাকিস্তানের প্রস্তাবে, তবে বাংলাদেশ চায় দুবাই ট্রানজিট দিয়ে পাকিস্তান যেতে।
অন্তর্বর্তী সরকার থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে পাকিস্তানের হাই কমিশনার বৈঠক করেছেন দেশের বৃহত্তম বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস বাংলার সাথে। এরপর তার সাক্ষাৎ করার কথা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সাথেও। ঢাকা করাচি রুট শুরু হলে বাংলাদেশ থেকে এই দুটো এয়ারলাইন্সকেই পছন্দ পাকিস্তানের, আর পাকিস্তানের পক্ষ থেকে থাকবে পিআইএ। যদিও পিআইএ কে বাংলাদেশে ফ্লাইট চালাতে হলে আবেদন করতে হবে বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশনের কাছে। এর আগে 2022 সালে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনকে ঢাকা করাচি ফ্লাইট পরিচালনায় আগ্রহের কথা জানিয়েছিল তারা। বাংলাদেশ থেকে যাত্রীদের করাচি হয়ে ইসলামাবাদ ও লাহোর এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, ওমান, ইয়েমেন, উজবেকিস্তান ও তুরস্ক সহ আশেপাশের देशগুলোতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল পিআইএ। ले जी, आपने ये वीडियो देख ली है किस तरह से अब बांग्लादेश की जो प्राइवेट एयर कंपनी है और फिर उसके साथ मिलकर अब कैसे वहां से जो फ्लाइट है आएंगी पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, इसी तरह कराची में और फिर लाहौर में, ढाका से इस्लामाबाद। यानी मैं कहता हूं कि एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा कदम है जिससे दोनों कौमें बहुत एक दूसरे के करीब होंगी। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब जितने भी टूरिस्ट्स हैं वो सारे के सारे अब बांग्लादेश से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो जाते थे कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई को देखने के लिए। अब जनाब वो सारे के सारे जितने भी विजिटर्स हैं पाकिस्तान में आने के लिए पर तोल रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली हैं कि लोग आना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ढाका, उन्होंने मुलाकात की है कि भाई लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो शेख हसीना की दौरे हुकूमत रहा है, बदकिस्मती से तब से लेकर अब तक 17, 18, 19 साल हो चुके हैं, ये पाबंदियां लगाई जा रही थी कि भाई नहीं जा सकते आप। लेकिन अब शुक्र है कि रेवोल्यूशन के बाद अब ये एक अच्छा दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा मूव है कि अब जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम फिर सकते हैं। इधर आकर पाकिस्तान में बहुत अच्छी ऐसी जगहें हैं जहां वो आकर घूम सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। इधर जो मरी है वो बहुत खूबसूरत इलाका है, और कोई दोस्त अगर घूमने फिरने की सिलसिले में यानी वो आना चाहता है पाकिस्तान में टूरिस्ट वीज़े के तौर पर, वैसे वो आए, मेरे से रब्ता करे, मैं उनको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि पाकिस्तान में किस किस जगह पर जाकर आपने घूमना है, तो कौन सी खूबसूरत सैर व तफरी के लिए जगह हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।